Assalamualaikum viewers. Today we are going to discuss construction of mole ratio as conversion factor in stoichiometric calculations. Now, very important topic is what is a ratio? Ratio indicates basically the numerical description of one number to the other. For example, आप एक बाउल लेते हैं, उसमें 6 आपके पास लेमन्स हैं और एक आपके पास ऑरेंजेस हैं. अगर आप उन दोनों की रेशो लेमन और ऑरेंज की निकालते हैं तो ऑरेंजेस हैं और 6 लेमन्स हैं, तो ऑरेंज और लेमन की जो रेशो आती है दैट इज 8:6, राइट. अगर आप लेमन और ऑरेंज की रेशो लेते हैं तो दैट इज 6:8. रिमेंबर व्हाट इज रेशो? Ratio is basically comparison of one number to the other. Now, when we are talking about mole ratio, then in chemical reactions we have two of the quantities. One is left hand side of the equation, that is reactant, and the other is right hand side of the equation, these are products. When we compare the amount of relative amount of reactants with respect to product, or we quantify reactants, one of the reactant or all the reactants with one of the product or all of the products, that is basically mole ratio. Now look at the equation. This equation states that 1 mole of propane C3H8 reacts with 5 mole of oxygen to produce 3 moles of carbon dioxide and 4 moles of water. So if we look at the mole ratio of this equation, then we can say that 6 moles of the overall reactants, they are reacting to produce 7 moles of the products. And if we compare one of these, like I compare oxygen and carbon dioxide, so I say oxygen are consumed 5 and carbon dioxide is produced 3, so ratio between oxygen and carbon dioxide is 5:3. If I compare oxygen versus water, so 5 moles of oxygen are consumed and 4 moles of water are being produced, so ratio between oxygen and water is 5:4. means mole ratio में आप कोई से एक या एक ज्यादा रिएक्टेंट्स को किसी भी एक प्रोडक्ट या एक ज्यादा प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं. अब जब भी आप इस मोल रेशो को एज कन्वर्जन फैक्टर के तौर पे लिखते हैं, तो कन्वर्जन फैक्टर में नॉर्मली हम इस रेशो को जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, नोन क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस. लास्ट एक वीडियो जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हम बात कर चुके हैं कि स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आपस में क्वांटिफाई करते हैं. नाउ लुक, व्हेनेवर वी यूज द बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू नो द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट, then we say that we are using the conversion factor or mole ratio in stoichiometric calculations. Remember, whenever we are using the coefficients of balanced chemical equation to find the quantity of one of the reactant or product during stoichiometric calculations, we are using the methodology of mole ratio or conversion factor. Now this conversion factor basically defined as a ratio of balancing coefficients. 3 important terms in it. What is it? First of all हम क्या कहते हैं, ये एक रेशो है और किसके दरमियान रेशो है दी? बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स के दरमियान. इसका मतलब है जब भी आप CF कन्वर्जन फैक्टर लिखते हैं तो आप बैलेंसिंग कोएफिशिएंट की रेशो लिखते हैं और उसे आप लोकेट कहां से करते हैं जी? फाउंड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. वो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स हम कहां से लेते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लिखते हैं. और व्हाट इज इट्स फंक्शन which can be used means आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं किस काम के लिए? To interconvert the amount of any two participants. And what are these two participants? Generally these are either reactant or the product. It means जब आप balancing coefficients, it means जब आप किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स को रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स किसी एक क्वांटिटी को दूसरी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप उसको कन्वर्जन फैक्टर के नाम से ध्यान में रखते हैं. अब जब भी हम कन्वर्जन फैक्टर लिखते हैं तो प्रॉब्लम ये है जैसे इस इक्वेशन में 2 रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स हैं. जरूरी नहीं है कि आपको तमाम रिएक्टेंट्स या तमाम प्रोडक्ट्स इकट्ठे एक्सप्लेन करने हो. फॉर एग्जांपल आई से टू यू दैट आई हैव 10 moles of oxygen. How many moles? I have 10 moles of oxygen. Now tell me how many moles of water can be produced by using 10 moles of oxygen. So to perform this, what I have to use is I have to use CF.
I have to use CF conversion factor. First of all हम क्या करते हैं, जब CF लिखते हैं तो दो क्वांटिटीज जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं, जैसा कि ऑक्सीजन और वाटर को, जिस क्वांटिटी के मोल्स आपको पता होते हैं दैट एक्ट एज नोन क्वांटिटी, और जिस क्वांटिटी के मोल्स आपने फाइंड आउट करने होते हैं दैट एक्ट एज अननोन क्वांटिटी. नाउ रिमेंबर, whenever you are writing CF, the moles of unknown quantity becomes numerator and moles of known quantity becomes denominator. Means CF can be written as, what is unknown quantity? Water. और वाटर के कितने मोल्स आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में गिवन है? 4. It means 4. This will be act as numerator. और नोन क्वांटिटी जो आपके पास होती है दैट शुड बी एक्टिंग एज डिनोमिनेटर. अब नोन क्वांटिटी यहाँ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने मोल्स है? 5. सो वी से 4/5 दैट बिकम्स CFR conversion factor. How to write conversion factor? No moles of unknown quantity in a given calculation divided by moles of unknown quantity. और ये जो मोल्स आप लेते हैं किसकी मदद से लेते हैं? बैलेंसिंग कोएफिशिएंट या बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की मदद से लेते हैं. अब जब भी आप CF लिखते हैं, कन्वर्जन फैक्टर लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. और व्हाट इज दैट कैलकुलेशन? आपने यहाँ क्या करना है? 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको गिवन है और आपने वाटर के मोल्स फाइंड आउट करने हैं. जिस चीज के मोल्स आपने फाइंड आउट करने होते हैं दैट बिकम्स आवर डिजायर्ड क्वांटिटी. हमें मोल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करने हैं, सो दैट बिकम्स आवर डिजायर्ड क्वांटिटी. जिस चीज के मोल्स आपको गिवन होते हैं दैट बिकम्स आवर गिवन क्वांटिटी, GQ. Means desired quantity is equal to given quantity into CF. Now this will give you the resultant answer for the moles कि आप वाटर के कितने मोल्स फॉर्म करेंगे. What is the formula? Desired quantity, जिस चीज के मोल्स आपको फाइंड करने हैं, will be equal to given quantity, जिस चीज के मोल्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, into CF. Now how many moles of given quantity are provided? 10 moles of oxygen. We say that 10 into what is CF? CF is basically moles of unknown quantity in the Wallace chemical equation, that is 4, over moles of known quantity in the Wallace chemical equation, that is 5. So when we do certain specific cancellations, then there is 2 and here we get 8. So what are result? That we can form 8 moles of water by using 10 moles of oxygen. और अगर आप इसको रफ कैलकुलेशन में देखें तो भी यहाँ से समझ आता है बात कि 5 moles ऑक्सीजन के अगर 4 moles वाटर के प्रोड्यूस कर सकते हैं तो by doubling the amount of oxygen, that is 10 mole, we should have to be double moles of water, that is 8 moles. By this way we can do certain stoichiometric calculation, and which is a very important part of stoichiometric calculation which will be discussed in later certain numerical problems. ठीक, हम अब इस कन्वर्जन फैक्टर के क्वेश्चन को यूज करते हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सैंपल प्रॉब्लम 1.1 in which methanol burns in the presence of oxygen to produce carbon dioxide and water. जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि 3.5 moles of methanol are given. 3.5 moles of methanol are given. So what is known quantity in the equation? Methanol. If they are burned in oxygen, then calculate A पार्ट में आपको कैलकुलेट करने हैं how many moles of oxygen are used और B पार्ट में आपको कैलकुलेट करने हैं how many moles of water are used. अब मैंने क्या कहा, जब भी आप इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने लगते हैं सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? A पार्ट में CF कन्वर्जन फैक्टर. व्हाट इज CF? हाउ टू राइट CF? CF राइट करने के लिए हमने क्या कहा था कि जिन दो क्वांटिटीज को आपने कंपैरिजन में यूटिलाइज करना है, ए पार्ट में एक क्वांटिटी मेथनॉल है जिसको आपने कंपैरिजन में यूज करना है और दूसरी क्वांटिटी ऑक्सीजन है जिसको आपने कंपैरिजन में यूज करना है. और नाउ रिमेंबर दीस बोथ आर रिएक्टेंट्स. आप फाइंड ये करना चाह रहे हैं कि अगर एक रिएक्टेंट इतनी अमाउंट में गिवन है तो इसके साथ दूसरा रिएक्टेंट कितनी अमाउंट में कंज्यूम होगा. यू वांट टू शो द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन विद द 3.5 मोल्स ऑफ मेथनॉल. अब नोन क्वांटिटी इज मेथनॉल और अननोन क्वांटिटी इज ऑक्सीजन. हियर नन ऑफ द प्रोडक्ट इज एंगेज्ड इन CF. both the quantities which are being engaged in CF, they are the reactants. तो फॉर्मूला हमने क्या बोला था कि जो अननोन क्वांटिटी है उसके मोल्स को आप न्यूमरेटर लेते हैं और जो नोन क्वांटिटी है उसके मोल्स को आप डिनोमिनेटर लेते हैं. अननोन क्वांटिटी ऑक्सीजन, सो CF will be 3 moles of oxygen divided by
नोन क्वांटिटी इज मेथनॉल और मेथनॉल के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने मोल्स गिवन है 2। रिमेंबर जब भी आप CF लिख रहे होंगे तो आप नोन और अननोन क्वांटिटी के वो मोल्स यूज करेंगे जो आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन से मिले हैं। सो CF हमारे पास क्या हो गया 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल। नाउ हमने क्या कहा था DQ डिजायर्ड क्वांटिटी हमने निकालनी है एंड व्हाट इज डिजायर्ड क्वांटिटी इज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज दैट डिजायर्ड क्वांटिटी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। फार्मूला हमने क्या बोला था डिजायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी इनटू CF। नाउ व्हाट इज आवर डिजायर्ड क्वांटिटी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हाट इज आवर given quantity that is 3.5 moles of methanol. So these are 3.5 moles of methanol. And what is our CF? 3 moles of oxygen divided by 2 moles of methanol. So जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व होता है। डी पार्ट में कि जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 5.25 moles of desired quantity. What is that? Is oxygen. अब बी पार्ट में हमें क्या करना है मोल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करने हैं। अगेन किस चीज के मोल्स आपको गिवन है मेथनॉल के। सो मेथनॉल विल बी आवर नोन क्वांटिटी। किस चीज के मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं वाटर के। तो इट मीन कंपैरिजन बिटवीन मेथनॉल एंड वाटर विल बी यूज्ड। अब हमने क्या कहा CF हम सबसे पहले लिखते हैं। हाउ टू राइट CF कैसे लिखते हैं आप मोल्स ऑफ unknown quantity. And what is unknown quantity? Water means moles of water divided by moles of methanol CH3OH. moles of water बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने हैं 4 और moles of methanol बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने हैं 2। अब सेकंड फेज में आपने क्या करना है फार्मूला यूज करना है desired quantity DQ is equal to given quantity into CF. What is desired quantity? Moles of water. What is given quantity? Moles of CH3OH methanol. And what is RCF? Moles of water divided by moles of methanol. So moles of methanol आपके पास कितने given है 3.50 multiplied by 4 divided by 2. जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो that comes out to be 7 moles. इस तरह आप एक नोन क्वांटिटी मेथनॉल की मदद से दूसरी मोल अननोन क्वांटिटी ऑक्सीजन की कितनी कंजम्पशन होगी आपके पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं। बी पार्ट में एक नोन क्वांटिटी मेथनॉल की मदद से कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर्म होगी वो आप सॉल्व कर चुके हैं। तो इस तरह से आप क्वांटिफाई कर रहे हैं वन ऑफ द रिएक्टेंट को विद वन ऑफ द प्रोडक्ट और वन ऑफ द रिएक्टेंट को विद अ सेकंड रिएक्टेंट एंड दैट कंपैरिजन इज डन थ्रू डिफरेंट स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। थैंक यू फॉर वाचिंग।